students, how are you all? Welcome to Enlight English. My name is Anupati Srivastav. I'm again here with some very knowledgeable things for you. So, as we have already discussed section A of your question paper, question number one and question number two. Question number one was reading section, reading comprehension, and question number two was note making. And so I thought now I take up writing section, which is section B, advanced writing skills. So today we'll discuss poster, how to draft a poster. And this is children, this is your question number three. You have, four short compositions and only two will come. And out of two, you have to do only one. So this is of 4 marks. All short compositions are of 4 marks, and it will include poster, advertisement, notice, and invitation. So I'll take one by one all the topics and I'll explain you. So today we are going to understand how to draft or design a poster. Children, this is a detailed video for poster making and poster drafting, how to draft a poster. So if you watch the video full, then only you'll able to understand all the minute details which makes a wonderful poster, and you'll get full marks. So it's very important to know all the minute details for drafting a poster. So first of all, you have to understand what is a poster. So let me take this and I'll just define you what is a poster. Children, poster, you can say it is a useful means of making an announcement or appeal, or you can say to create awareness in public interest. And it is also so very important things ki a poster is always issued by whether some political parties, NGOs, or you can say education department, family welfare department, etc. So many things. So basically I have what I have figured out. It is only for, basically it is for two things. First of all, it's used to spread awareness regarding a social issue, okay, or you can say an event or a product. सो बेसिकली इन दोनों चीज़ों के लिए पोस्टर का यूज़ होता है. मैं थोड़ा सा हिंदी में भी एक्सप्लेन कर दे रही हूँ कि जो पोस्टर है एक बहुत ही यूज़फुल मीन्स है. किस चीज़ के लिए? अनाउंसमेंट करने के लिए. कोई आपको अनाउंसमेंट करना है अट्रैक्टिव तरीके से और लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करनी है पब्लिक इश्यूज़ को लेके, सोशल अवेयरनेस को लेके, कोई सी प्रोडक्ट को लेके, किसी डोनेशन कैंप को लेकर के, किसी इंफॉर्मेशन को अगर आपको के बारे में लोगों को अवेयर कराना है, तो बताना है, तो पोस्टर एक बहुत ही आप कह सकते हैं इफ़ेक्टिव टूल होता है टू पोर्ट्रे, एंड जिससे लोग अवेयर होते हैं. अट्रैक्टिव तरीके से इसको ड्राफ्ट किया जाता है सो दैट जो लोग हैं इसकी तरफ अट्रैक्ट हों और इसके बारे में जानने की कोशिश करें. तो जैसे आई हैव टोल्ड यू दैट बेसिकली टू थिंग्स आर देयर. फर्स्ट, टू स्प्रेड social awareness, spread awareness regarding a social issue. किसी social issue के बारे में बात कर सकते हैं. इसके अलावा किसी इवेंट, कहीं पे कोई इवेंट हो रहा है या किसी प्रोडक्ट का एंडोर्समेंट करना है या उसका प्रमोशन करना है, उसकी पब्लिसिटी करनी है, तो पोस्टर इज, यू कैन से, अ वेरी अट्रैक्टिव टूल टू क्रिएट अवेयरनेस इन पब्लिक इंटरेस्ट. सो आई होप द डेफिनेशन इज क्लियर, इजंट इट? इसके बाद हम थोड़ा सा मार्किंग स्कीम डिस्कस कर लेते हैं. And children, if you have not watched my paper pattern video, so please go and watch it. There I have given all detailed video regarding marking scheme and paper pattern. तो यहाँ पर भी मैं थोड़ा सा इसका जस्ट दे दे रही हूँ, बट अगर आपको डिटेल्ड वे में चाहिए तो यू जस्ट गो एंड वॉच दैट वीडियो. सो पहले हम मार्किंग स्कीम के बारे में बात करते हैं. This, all the short composition, not only poster, you have 4 short compositions. मैं बार बार बोल रही हूँ, आपको 4 शॉर्ट कॉम्पोजिशंस हैं जो सारे ही 4 नंबर के हैं, जिनमें से सिर्फ 2 आएंगे और उन दोनों में से भी आपको सिर्फ एक ही करना है. सो दैट इज सो वेरी क्लियर. तो जो आपका सबसे बेस्ट पार्ट है उसको आप प्रिपेयर कीजिए, और 3 चीज़ों को भी अगर आप प्रिपेयर कर लेंगे, एक आप थोड़ा सा छोड़ भी देते हैं, देन ऑल्सो यूल गेट अ चॉइस.
Okay, so I think this is clear. So your short composition will be of 4 marks. So that means poster will be of 4 marks. So in total ये 4 नंबर का होगा. अब इन 4 नंबर का माइन्यूट डिवीजन क्या है? जस्ट सी टू इट. फॉर्मेट. अब सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर्मेट. फॉर्मेट में क्या आता है? फॉर्मेट में आपका आता है, इट इंक्लूड्स टाइटल, नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन, name of the issuing authority, sorry not institution, name of the issuing authority. मैंने हमेशा, जैसे मैंने अभी बताया कि जो पोस्टर है ये आपको आप इसलिए ड्राफ्ट करते हो क्योंकि यू हैव टू क्रिएट अवेयरनेस, लोगों में अवेयरनेस जगानी है, या तो किसी सोशल इशू को लेकर के, या कोई इवेंट ऑर्गेनाइज हो रहा है, या किसी प्रोडक्ट का प्रमोशन करना है. जैसे हम कह सकते हैं हमें किसी सोप का ही प्रमोशन करना है, जैसे लोकल लेवल पे बनाया गया है, हमने कोई प्रोडक्ट बनाया है. अब भाई हम उसको कैसे प्रमोट करें? मे बी हम वी डोंट हैव दैट मच मनी कि हम उसको पहले डायरेक्टली जा करके टीवी पे प्रमोट कर सके. सो पोस्टर इज द चीपेस्ट वे कि हम उसके कुछ पोस्टर्स निकलवा लें और जाकर के कहीं पे पेस्ट कर दें, तो एटलीस्ट जाते आते लोगों की नज़र पड़ेगी एंड दे विल एबल टू अंडरस्टैंड कि हमारा क्या प्रोडक्ट है, और मे बी कुछ लोगों की नज़र पड़ेगी और उससे हमारा जो प्रोडक्ट है वो बिकेगा. तो बेसिकली ये सारी प्रमोशन स्ट्रैटेजीज होती हैं. सो इसी वजह से ये इसमें सब, अगर आप जब भी पोस्टर ड्राफ्ट कर रहे हैं किसी भी चीज़ के लिए, चाहे सोशल अवेयरनेस के लिए हो, इवेंट के लिए हो, प्रोडक्ट के लिए हो, वट एवर इट इज, इट ऑलवेज इंक्लूड्स टाइटल, जो कि फॉर्मेट का पार्ट होता है. तो सबसे पहले पोस्टर में आपको एक टाइटल देना है, अट्रैक्टिव टाइटल देना है. टाइटल के मार्क्स होते हैं, तो डोंट फॉरगेट टू गिव द टाइटल. इसके अलावा टाइटल के बाद आपको नेम ऑफ द इशूइंग अथॉरिटी ज़रूर लिखना है. ये दोनों जब लिखेंगे देन ओनली यू विल गेट फुल मार्क्स. सो दैट इज सो वेरी इंपॉर्टेंट. मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि वैसे वी डोंट हैव अ फिक्स्ड लेआउट फॉर द पोस्टर. दैट इज़ वाई हमको लगता है कि हम कैसे भी बस ड्राइंग बना देंगे, कुछ भी कर देंगे तो विल गेट मार्क्स. नो, इट फॉलोज अ स्ट्रिक्ट फॉर्मेट, तो यू हैव टू फॉलो दैट, इजंट इट. तो सबसे पहले आप टाइटल को इंक्लूड करेंगे. इसके अलावा नेम ऑफ द इशूइंग अथॉरिटी, ये बेसिकली हम नेम ऑफ द इशूइंग अथॉरिटी जो है वो लास्ट में लिखते हैं. जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ. मान लीजिए आपको क्या करना है, आपको सेव वाटर का एक पोस्टर डिजाइन करना है कि आप पानी को कैसे बचाएं. सो इफ यू हैव टू ड्राफ्ट दैट काइंड ऑफ पोस्टर, तो हाउ विल यू ड्राफ्ट? पहले तो आप एक अच्छा टाइटल दे दोगे. जैसे जब सेव वाटर है तो हम टाइटल, मान लीजिए हमने दे दिया सेव वाटर, वी हैव गिवन अ टाइटल सेव वाटर. बट एट द लास्ट जब हम अपने सारी चीजें कर लेंगे तो लास्ट में हम हमेशा लिखेंगे इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय वाटर अथॉरिटी इंडिया. ठीक है? या आप चाहे वाटर के बारे में बता रहे हैं, अगर कोई ब्लड डोनेशन कैंप है तो इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय डोनेट लाइफ इंडिया, या जो भी नाम आप देना चाहें, मगर इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट भाई ये याद कर लीजिए. लास्ट में मैंने लिखा भी है, आप पॉज करके देख सकते हैं. हमेशा कभी भी अगर हम कोई सोशल अवेयरनेस का पोस्टर लिख रहे हैं तो वहां पे इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट लिखेंगे. और अगर हम किसी इवेंट के बारे में लिख रहे हैं तो इवेंट हमेशा कोई स्पॉन्सर करता है, बिना स्पॉन्सर के हमें इवेंट नहीं मिलता है, तो हम स्पॉन्सर्ड बाय टाइटल लिख देंगे, या फिर जो भी इंस्टीट्यूशन का नाम है या जो भी अथॉरिटी उसको इशू कर रही है, वी हैव टू write the name. So these two things are so very important, then only you will get full. Fine. So I hope this is clear. Then come to the content. Content will be of 2 marks. Sorry, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है. यहाँ पे कंटेंट जो आपका वो 2 मार्क्स का होगा. ठीक है? सो कंटेंट विल बी ऑफ 2 मार्क्स. कंटेंट जो आपकी कहानी, एंड एक्सप्रेशन विल इंक्लूड ग्रामेटिकल एक्यूरेसी, और आपकी जो स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं वो सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड होंगी. इसके अलावा यू हैव टू फॉलो अ स्ट्रिक्ट वर्ड लिमिट विच इज 50 वर्ड. यू डोंट हैव टू गो मोर देन दैट. अब सबसे इंपॉर्टेंट है, यू हैव टू रिमेंबर फ्यू पॉइंट्स. यू हैव टू रिमेंबर फ्यू पॉइंट्स while drafting a poster. The very first thing you have to do, you have to draw a box. ठीक है? जो हम हमेशा ज़्यादातर हम लोग भूलते हैं, बिकॉज यू हैव टू ड्रॉ अ बॉक्स, यू हैव टू ड्राफ्ट अ पोस्टर विद इन अ बॉक्स. Secondly, what do you have to give? You have to give a heading, title. This is necessary because it marks, फॉर्मेट का पार्ट है, तो आप बॉक्स बनाओगे ज़रूर.
देन यू हैव टू गिव अ कैची हेडिंग और टाइटल, वो बहुत ही अट्रैक्टिव होना चाहिए और आप उसको अट्रैक्टिव तरीके से लिख सकते हैं। इट्स नॉट कि आपको कैपिटल लेटर्स में ही लिखना है या स्मॉल लेटर्स में ही लिखना है, दैट इज अप टू यू, जिस तरीके से भी आप लिखना चाहें। हाँ, बट आप कलरफुल मतलब आप कलर्स का यूज नहीं कर सकते। यू ईदर यू यूज नेवी ब्लू स्केच कलर का यूज कर सकते हैं या फिर ब्लू पेन का, ब्लू के डिफरेंट शेड्स आप यूज कर सकते हैं, बट इसके अलावा आप ब्लैक और ब्लैक पेन आप यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। फिर इसकी सबसे इम्पोर्टेंट थर्ड जो पॉइंट है हमारा, वो है कि हमें कैची स्लोगन्स, फ्रेजेस और कैप्शंस डालने हैं। आप कभी भी पोस्टर में लंबे लंबे सेंटेंसेस नहीं लिखेंगे। जैसे मैंने बताया था कि नोट मेकिंग में आपको सिर्फ फ्रेजेस लिखने होते हैं, फ्रेजेस के लिए आपको लॉन्ग सेंटेंसेस आर नॉट अलाउड। तो यहाँ भी आप बहुत लंबे लंबे सेंटेंसेस नहीं लिखेंगे, जो कि आप फ्रेजेस लिख सकते हैं, कैची स्लोगन्स लिख सकते हैं, किसी की सेइंग लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आप सेव वाटर के ऊपर ही लिख रहे हैं या फिर आप तो उसमें आप सिंपल से लिख सकते हैं लाइक recycle H2O, reuse H2O, prevent leakages, prevent this war by following, कुछ भी आप ऐसे कुछ करके लिख सकते हैं छोटे छोटे चीज में। जैसे आप लिख सकते हैं वाटर प्रेशियस फॉर लाइफ। सो आपको पूरे फुल सेंटेंसेस नहीं लिखने, यू हैव टू राइट कैची स्लोगन्स और फ्रेजेस। पूरे पूरे सेंटेंसेस में इसमें मार्क्स कटते हैं। 4 पॉइंट, इलिस्ट्रेट योर पोस्टर विद स्क्रैच ड्राइंग वेयर एवर नेसेसरी। भाई मैं इस चीज़ के लिए मैं तभी आपको कहूँगी व्हेन योर ड्राइंग इज सो वेरी गुड। आपको अननेसेसरी का जिसकी ड्राइंग नहीं अच्छी है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट ना करें। बट इफ़ यू थिंक यू कैन ड्रॉ अ नाइस स्केच और यू कैन ड्रॉ समथिंग विच इज़ रिलेटेड टू द टॉपिक, रेलेवेंट है, तो आप प्लीज़ ड्रॉ करें, वो आपको एक एड ऑन देगा। अदरवाइज अगर आपकी ड्राइंग अच्छी नहीं है तो आप कुछ उससे रिलेटेड कुछ मार्क्स बना सकते हैं, कुछ स्केच कर सकते हैं, कुछ सिंपल से ड्रॉ कर सकते हैं, कोई साइंस बना सकते हैं, या जो आप कैची स्लोगन्स या फ्रेजेस लिख रहे हैं उसी को डिजाइनर वे में लिख सकते हैं। 5th पॉइंट, देयर इज नो फिक्स्ड लेआउट। मतलब कभी मैंने आपसे जैसे बताया पोस्टर का कोई फिक्स लेआउट नहीं है कि आपको पहले जैसे हर चीज़ में होता है, नोट मेकिंग में ऐसे ऐसे होता है, इस तरह से कोई स्टेप वाइज नहीं है कि आपको पहले क्या लिखना है बाद में क्या लिखना है। हाँ, आपको एक टाइटल ज़रूर देना है एंड नेम ऑफ द इशूइंग अथॉरिटी देना ही देना है। ये दोनों चीज़ मस्ट है। इसके अलावा कंटेंट और आपका एक्सप्रेशन पे मार्क्स मिलेंगे, बट आपका कंटेंट ये ज़रूरी नहीं है कि आपका लाइन वाइज होना चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड राइट, दिस इज अप टू यू, बट इट शुड बी प्रॉपर वे में होना चाहिए। अननेसेसरी की चीजें उसमें आप ऐड नहीं करेंगे। 6th पॉइंट इज यूज कन्विंसिंग लैंग्वेज। सो पोस्टर हमेशा हम अपनी चीजों का प्रमोशन करते हैं, सो इट शुड बी वेरी कन्विंसिंग, इट शुड बी वेरी यू कैन से अट्रैक्टिव, एंड आप जो लिखेंगे भी दैट इज ऑल्सो सो वेरी अट्रैक्टिव। 7th पॉइंट, फॉलो द वर्ड लिमिट। जैसे मैंने पहले ही बताया 50 वर्ड से ज्यादा की कोशिश मत कीजिएगा। You have to follow the strict word limit. After that, proper spacing should be given. तो ये मैंने इसलिए लिख दिया है क्योंकि बच्चों की थोड़ी सी आदत होती है या तो बहुत ही चिपका के लिख देते हैं या बहुत दूर दूर लिख देते हैं या एक कैपिटल एक स्मॉल लिख दिया। आपको ऐसे लिखना है जैसे सिर्फ आपके समझ में ना आए, वो सबके समझ में आए। बिकॉज I know that some of you have not so very good handwriting. So if you don't have a good handwriting, try to write in capital letters and बहुत चिपका के मत लिखिए, प्रॉपर स्पेसिंग दीजिए सो दैट वो समझ में आए, एक टीचर उसे समझ सके, क्योंकि वो सिर्फ आपको नहीं पढ़ना है, इट शुड बी रिटन बाय इट शुड बी रेड बाय so many people. So 9th, this is the so very important point, at last नेम ऑफ द इशूइंग अथॉरिटी विच इज नेसेसरी। तो जहां मैंने नेसेसरी लिखा है उसको बहुत ध्यान दीजिएगा। बाकी आप मान लीजिए ड्राइंग को स्किप कर सकते हैं, यू कैन राइट कैप्शंस ओनली। कंटेंट में आप किसी भी तरह का कंटेंट दे सकते हैं, मगर ये फर्स्ट जो सेकेंड पॉइंट है और 9th पॉइंट है एंड फर्स्ट पॉइंट है दैट यू हैव टू ड्रॉ अ बॉक्स, यू हैव टू गिव अ हेडिंग और टाइटल, एंड यू हैव टू एट लास्ट यू हैव टू राइट द नेम ऑफ इशूइंग अथॉरिटी। ये अवेयरनेस से अगर रिलेटेड है, सोशल अवेयरनेस से रिलेटेड है, तो आप क्या लिखेंगे, या आप पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि बहुत लोगों को स्पेलिंग और इन सब चीजों में डाउट होगा। यू जस्ट पॉज, टेक अ स्क्रीनशॉट। इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय, अब बाय में अगर वो वाटर से रिलेटेड है तो आप वाटर अथॉरिटी लिख दो,
या डोनेट ऑर्गन से रिलेटेड है तो आप डोनेट लाइफ इंडिया, या जो भी आपको अगर क्वेश्चन में दिया है, वेल एंड गुड, क्वेश्चन में नहीं दिया है तो आप अपने मन से क्रिएट करके लिख दो, जो टॉपिक है उसी को इशूइंग अथॉरिटी का नाम दे दो, बट यू हैव टू राइट द नेम ऑफ द इशूइंग अथॉरिटी। इसके अलावा अगर कोई इवेंट है, जैसे कोई कार्निवल लग रहा है, इफ इट इज एनी फेट और अ मूवी प्रीमियर और काइंड ऑफ समथिंग, और महोत्सव काइंड ऑफ समथिंग, जो भी चीज़ें हैं, तो वो जो इवेंट है वो कोई ना कोई तो स्पॉन्सर कर रहा है ना। जैसे कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट है तो ई स्पॉन्सर्ड बाय ई लर्निंग, स्पॉन्सर्ड बाय दिस एंड दैट, जो भी कोई भी नाम आपको देना है जो कि रेलिवेंट हो उस क्वेश्चन से, ठीक है। तो इवेंट या प्रोडक्ट के लिए है तो स्पॉन्सर्ड, एंड सोशल अवेयरनेस के लिए है तो इशूड। तो ये आई होप आप ध्यान रखिएगा। अब जब सोशल अवेयरनेस के लिए हो तो क्या क्या कर सकते हैं, और इवेंट के लिए हो तो क्या क्या करना है, और क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को ध्यान में रखना है जब भी कोई सोशल अवेयरनेस का टॉपिक आता है। जैसे सोशल अवेयरनेस में आप कह सकते हो, जैसे मैंने बोला डोनेट ऑर्गन्स, जैसे डिजाइन अ पोस्टर दैट क्रिएट्स अवेयरनेस टू डोनेट ऑर्गन। इसके अलावा डिजाइन अ पोस्टर ऑन सेव वाटर, ये सब क्या है, ये सब सोशल अवेयरनेस है। सोशल अवेयरनेस है कि आप पानी को बचाइए, अपने ऑर्गन जैसे आई डोनेट कीजिए, या इम्पोर्टेंस ऑफ वोटिंग, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैं आपको कोई टाइम वेन्यू ये सारी कुछ चीजें नहीं देनी है। जैसे इफ आई से डिजाइन अ पोस्टर क्रिएटिंग अवेयरनेस टू सेव अ गर्ल चाइल्ड, तो आपको ये सारी जो चीजें हैं, ये सारी चीजें किससे रिलेटेड है, सोशल अवेयरनेस से। मतलब एक सोशल प्रॉब्लम है जिसको आपको सॉल्व करना है, इसलिए आपके अंदर अवेयरनेस जगाई जा रही है ताकि फ्यूचर जो है वो हमारा सुरक्षित हो। सो इन सब चीजों में आपको क्या लिखना है, जैसे हेडिंग कंपल्सरी, देन द प्रॉब्लम एंड इट्स कॉजेस, मतलब जैसे अगर वाटर है तो उसकी क्या प्रॉब्लम है, अगर खत्म हो जाएगा तो हम कैसे रहेंगे, सो मेनी थिंग्स आर देयर। देन effect of the problem, how does the problem will affect us sooner or later, for sure it will affect to us, so how will you solve the problem? So thoda you will write the effects of the problem, then you will first you'll write what is the problem and its causes, in short captions or phrases you'll write. देन जैसे एक गर्ल चाइल्ड के लिए है हाउ टू सेव अ गर्ल चाइल्ड, तो पहले तो यू विल गिव अ हेडिंग सेव गर्ल चाइल्ड, ठीक है। देन क्या प्रॉब्लम है, यू कैन से कि और क्या इफेक्ट्स हैं। द प्रॉब्लम ये है कि वी ऑलवेज थिंक दैट अ गर्ल इज अ बर्डन, ठीक है। डू वी नीड टू थिंक बिफोर सेविंग अ लाइफ, व्हाट अ शेम मदर, these things you have to understand all those things and you have to give a catchy phrases so that the problem will get solved. Then solutions to the problem, how will you give the solutions to the problem? You have to save a girl child because she's a giver, she will be the mother tomorrow, a woman shapes the destiny of the civilization, let her grow, save her. So ये सारी चीजें आप solutions बताओगे। देन नेम ऑफ द इशूइंग अथॉरिटी, अब सेव गर्ल चाइल्ड का अगर किसी ने पोस्टर लगाने के लिए बोला है तो वो कहीं ना कहीं से भाई इशू किया गया होगा ना, कोई इशूइंग अथॉरिटी होगी। तो जैसे मैंने लेट्स से आई हैव गिवन अ नेम इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय तारा, अ सोसाइटी फॉर सेविंग जर्नल, मतलब एक सोसाइटी है जो ये पोस्टर को ड्राफ्ट करवा रही है। तो जरूरी नहीं है कि आप कोई ये अपने मन से भी बना सकते हैं, अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं इफ इट इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन। क्वेश्चन में गिवन है तब तो यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन, यू हैव टू राइट द सेम। But if it is not given in the question, then you have to use your own brain. So all those points will be clear and will be covered. All those value points will be covered in that social problem. The second part, which is for an event. So like I've told you, first is for social awareness, second is for an event. So if a poster is been draft for an event, तो देयर शुड बी अ वेन्यू टाइम पर्पस। तो यहाँ पर जो आपको डिटेल्स हैं वो थोड़ी सी और देनी पड़ेंगी। यहाँ पे आप सिर्फ अपने मन से ड्राफ्ट नहीं कर सकते, यहाँ पे यू हैव टू गिव ऑल दोज थिंग्स। सबसे पहला पॉइंट और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, यू हैव टू गिव द नेम ऑफ द इवेंट। जैसे लेट्स से यू हैव टू डिज़ाइन अ पोस्टर टू इनवाइट पीपल टू अ रैली, जिसमें यू हैव टू प्रमोट women empowerment by restricting violence.
सो वुमेन एम्पावरमेंट को बढ़ाने के लिए आप एक इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं. सो यू हैव टू राइट द नेम ऑफ द इवेंट. सो नेम ऑफ द इवेंट जैसे हो गया शक्ति, द लाइफ ऑफ एन एम्पावर्ड वुमेन. कोई भी टॉपिक आप दे सकते हो, कोई भी हेडिंग दे सकते हो. पर्पस क्या है? एम्पावर्ड वुमेन, ऑलरेडी यू हैव डिफाइंड. देन डेट, टाइम एंड वेन्यू. डेट क्या है? जैसे मैंने दे दिया कि भाई आज जैसे 16 जून. या टाइम दे दिया 5:30 PM. वेन्यू कहाँ है? वेन्यू हमने कह दिया भाई किसी ऑडिटोरियम का नाम दे दिया. एंड इफ इट इज गिवन इन द क्वेश्चन, वेल एंड गुड. इफ नॉट, देन यू हैव टू मेक बाय योर ओन. बट प्रोवाइडेड दैट आप ये सारी चीज़ें देंगे. तो डेट, टाइम और वेन्यू. उसके बाद से अगर कोई एंट्री टिकट वहाँ पे लगना है या फिर आप चाहते हैं कि उसका भी आप जिक्र करें, एंड इफ इट इज़ गिवन इन द क्वेश्चन, सो एंट्री टिकट है तो वहाँ पर आप वो भी करेंगे कि टिकट्स कितने हैं, कितने के टिकट्स हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, टिकट्स लगेंगे कि नहीं, वो सारी चीज़ें आप. उसके बाद से हाईलाइट्स ऑफ द इवेंट. भाई वाई पीपल विल गो टू अटेंड दैट इवेंट, दैट इज सो वेरी इंपॉर्टेंट. कि इफ कोई आ रहा है आपके इवेंट को अटेंड करने, तो आपका इवेंट कुछ फ्रूटफुल होना चाहिए या लोगों को अट्रैक्ट करना चाहिए. तो यू विल हाईलाइट द इवेंट. क्या हाईलाइट होगा? मे बी कुछ अवार्ड विनिंग कोई डॉक्यूमेंट्री चलेगी, सम परफॉर्मेंसेज विल बी taken place, who was the chief guest, so many things. You have to give all those details. Then very important, name of the issuing authority. अब इशूइंग अथॉरिटी का नेम आप लिखेंगे. जैसे आप ये किसने आपको सपोर्ट कर रहा है, आप सपोर्टेड बाय लिख सकते हैं, स्पॉन्सर्ड बाय लिख सकते हैं. हाँ, तो इसमें आप लिख सकते हैं द सेंटर फॉर वुमेन स्टडीज़ दिल्ली या लखनऊ या गोरखपुर, कुछ भी लिख सकते हैं. अगर वहाँ पे प्लेस नहीं दिया है तो आप अपने मन से बना सकते हैं. तो ये दोनों चीज़ें जब भी आएंगी तो आप ये ध्यान रखेंगे. अब हम आते हैं एक सैम्पल पे. जैसे यहाँ पर पहले दो मैं आपको दिखा रही हूँ. सोशल अवेयरनेस के लिए एक पोस्टर ड्राफ्ट हुआ है. तो सोशल अवेयरनेस, आपको किसके प्रति सोशल अवेयरनेस जगानी है? डाउरी अ सोशल इविल विच इज़ अ कर्स. सो यू हैव टू ड्राफ्ट अ पोस्टर to create awareness that dowry is a social evil and people should avoid or prohibit taking dowry. So first of all, you have to give a catchy heading. What is the catchy heading here? Dowry, a social evil, a curse. Say no to dowry. That is इफेक्टिव है ना. आप इस तरीके से इसको किसी और डिज़ाइनर वे में लिख सकते हैं. जैसे अपोस्ट्रोफी में लिखा है, आप यहाँ पे अंडरलाइन करके लिख सकते हैं. किसी भी तरीके से आप लिख सकते हैं. देन जैसे कि मैंने कहा, प्रॉब्लम्स क्या हैं, सॉल्यूशंस क्या हैं, इफेक्ट्स क्या हैं, ये सारे देखेंगे. डाउरी इज एन ऑफेंस. ठीक है. डिमांडिंग. अब यहाँ पर देखिए पूरे लॉन्ग सेंटेंसेस नहीं है कि पीपल विल डिमांड लॉट ऑफ डाउरी बिकॉज द सन इज एजुकेटेड और काइंड ऑफ थिंग्स. ऐसा कुछ भी नहीं है. ठीक है. यहाँ पे सिंपल सी बात है, आपने बस गिविंग एंड टेकिंग, इससे समझ में आ गया. ओके. तो यू हैव टू गिव शॉर्ट फ्रेजेस. मैक्सिमम पनिशमेंट 5 years इम्प्रिजनमेंट. मतलब अगर किसी ने भी डाउरी ली तो 5 साल की जेल है एंड 50,000 फाइन. इसके बाद डिमांडिंग एंड गिविंग डाउरी इज इलीगल एंड इमोरल. दिस वे आप थोड़ा सा उसको हाईलाइट करेंगे. जैसे हाईलाइट्स आपके जो भी हैं इसमें आप उस चीज़ को हाईलाइट करेंगे. देन आप जैसे यहाँ पर थोड़ा कुछ ब्रैकेट्स और काइंड ऑफ कुछ इमोजीज या कुछ इस तरीके से चीज़ें बना के वहाँ पे लिख दिया गया. जैसे मैरिज इज नॉट अ डील, बी अ मैन नॉट अ बेगर, बिकॉज पीपल हु डिमांड्स डाउरी, दे आर just like beggars who are taking dowry and they are demanding. So don't be a beggar, be a man. इसके बाद ये सारी चीज़ें तो ठीक होगी. जैसे आपका फॉर्मेट का पार्ट क्या हुआ? पहला ये आपका हेडिंग, ये बॉक्स एंड इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय विक्रम. अब देखिए यहाँ पे सिर्फ नाम लिए, किसी हो सकता है किसी इंसान ने, किसी जिसने भी ये इनिशिएटिव लिया हो, उसी ने इसको इशू किया हो. तो आई होप दिस इज क्लियर. कम टू द सेकेंड वन. अब जैसे एक पोल्यूशन के प्रति आपको अवेयरनेस जगानी है, तो हेडिंग क्या होगी? पोल्यूशन अ थ्रेट टू मैनकाइंड. अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ड्राइंग वगैरह बना दिया गया है इधर एंड इधर. सो ये अगर आपकी ड्राइंग अच्छी है तो ये छोटी मोटी चीज़ तो आप ड्रॉ कर सकते हैं, और नहीं भी अच्छी है तो दिस kind of things you can draw. So please take up drawing. If you are a very good, you can draw it very nicely. Sketch वगैरह तभी बनाएं, या किसी लेडी या किसी इस तरह कोई डिफिकल्ट अगर स्केच आप बनाना चाह रहे हैं तो आप तभी बनाएं जब आपकी ड्राइंग बहुत अच्छी हो. अदरवाइज पोस्टर को आप हाईलाइट सुंदर तरीके से, अट्रैक्टिव से इफ यू राइट, यू विल गेट.
अब जैसे यहाँ पे कॉजेज दे दिए गए हैं, इफेक्ट्स दे दिए गए हैं, कम टुगेदर, क्योर टुगेदर, स्टॉप, थिंक एंड एक्ट, सारी चीज़ें हमने हाईलाइट, सारे फ्रेजेस, कंटेंट वगैरह सब दे दिया है, हेडिंग दे दी है। देन इशूड बाय एनवायरमेंट अवेयरनेस क्लब, मतलब इशू किया गया है इसके द्वारा, एनवायरमेंट अवेयरनेस क्लब के द्वारा। इसके बाद कोई इवेंट है। अब इवेंट क्या है, जैसे यहाँ पे हेडिंग क्या है, दिवाली मेला, देयर इज अ इवेंट है, दिवाली मेला है। यहाँ पे आपको क्या करना है, कहाँ पर है, डेट क्या है, टाइम क्या है, एंट्री फी क्या है, किस तरीके से सेलिब्रेट करना है, एंड किसने स्पॉन्सर्ड किया है। तो सबसे पहले ये सारी चीजें आप दिमाग में रखेंगे, जैसे लॉयंस क्लब एंड लियो क्लब ऑर्गेनाइज अ स्पार्कलिंग दिवाली मेला, मतलब वो दिवाली मेला कौन ऑर्गेनाइज कर रहा है, एक ऐसा क्लब है जो ऑर्गेनाइज कर रहा है, ठीक है। ये ऑर्गेनाइज कर रहा है और इसने स्पॉन्सर किया, ऑर्गेनाइज और स्पॉन्सर में थोड़ा सा फर्क है, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा आप इसको हाईलाइट कर देंगे, दिवाली मेला आपकी हेडिंग हो गई, इल्यूमिन योर लाइफ विद जॉय एंड हैप्पीनेस। अब इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट चीज़ें, आपको वेन्यू देना है, वेन्यू दे दिया आपने, आपने डेट बता दी, आपने टाइम बता दिया, यू हैव रिटन द एंट्री फीस। इसके बाद आपने थोड़ा सा और उसको एलाबोरेट करके दे दिया, सेलिब्रेट इको फ्रेंडली दिवाली, सेव द एनवायरनमेंट, कैरेक्टर फ्री। बस इतना सिंपल सा आपने कर दिया, आपका ये पूरा पोस्टर पूरा हो गया, एंड यू विल गेट फुल मार्क्स फॉर श्योर, ठीक है। So I hope this poster is clear. Up now you're able to draft or design a poster nicely, which is so very important. And if you are not good enough, your vocabulary is not so very enriched, so please frame short sentences. आप बहुत ज़्यादा उसको elaborate या बहुत लंबे लंबे sentences वैसे भी नहीं लिखने हैं इसमें, तो शॉर्ट लिखने की कोशिश करिए, डिज़ाइन स्केच ज़्यादा बनाइए, छोटे छोटे इंफॉर्मेशंस दे दीजिए, कम शब्दों में ज़्यादा डिफाइन करने की कोशिश कीजिए। और ये जो लास्ट में इशूइंग अथवा इसकी अगर आपको नहीं याद रहता है तो प्लीज़ लर्न इट, इसको अच्छे से याद कर लीजिए। स्पॉन्सर्ड बाय, इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय, this and that, whatever the thing is. So I hope this is clear. We'll meet in the next video. Till then, bye bye, take care, save yourself, be at home, study well. Thank you, children.